عزیز طلبہ و طالبات، فروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ جی بچوں، دھیرے دھیرے چلتے ہوئے ہم سبق نمبر 13 پر پہنچ گئے ہیں، اور سبق نمبر 13 جو ہے وہ اگین ہمیں بہت اچھا جو سبق ہے وہ دے رہا ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ کبھی اپنے کام کو ادھورا نہیں چھوڑنا۔ اس میں ہمارے شاعر اسماعیل ملیٹھی ایک ایک مصرعے کے اندر یہ پیغام دیتے ہیں اور ہمیں مثالوں سے بتاتے ہیں کہ کس طرح اگر ہم یہ کریں گے تو اس کا یہ رزلٹ آئے گا کہ جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جو کر رہے ہیں اس کا اچھا نتیجہ نکلے تو اس کے لیے ضروری ہے مسلسل کوشش، مسلسل محنت، بس کبھی ہار نہیں ماننی، اور دوسرا اصول اپنے کام کو کبھی ادھورا نہیں چھوڑنا۔ جو کام ایک دفعہ شروع کیا اسے انجام تک پہنچا کر دم لیں، دیکھیں آپ کی محنت کیا رنگ لاتی ہے۔ بیٹا، زندگی میں بہت سارے مقام ایسے آتے ہیں کہ جب ہمارا سوچا ہوا پورا نہیں ہوتا، جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، جس طریقے سے ہم چل رہے ہوتے ہیں، جس طرح سے ہم زندگی کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، وہ سب اپسیٹ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اب آپ نے ایک تجربہ کیا کووڈ والا، آپ نے دیکھا اسکول بند، مارکیٹس بند، زندگی ساری اتھل پتھل، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتے تو کیا نتیجہ نکلتا؟ صرف یہ کہ ہمارا وقت ضائع ہوتا، ہم پریشان ہوتے، سست روی کا شکار ہوتے، ہماری عمر آگے بڑھ جاتی اور کلاسز پیچھے رہ جاتی، ہمارے مسائل بڑھتے چلے جاتے، ہم پڑھا لکھا بھول جاتے۔ یہ سب کچھ ہونا تھا نا۔ لیکن کیا ہوا کہ کچھ روشن دماغوں نے یہ ایک حل نکالا کہ ہم آن لائن کلاسز کا آغاز کر لیں، اور اس طریقے سے آپ کا پڑھائی کا بالکل بھی حرج نہ ہو، آپ کا تعلیمی سال جاری و ساری رہے۔ بے شک آپ گھر میں ہوں، آپ لوگ کہیں باہر گئے ہوئے، آپ پارک میں بیٹھ کے بھی اپنی کلاس اٹینڈ کر سکتے ہیں، کوئی مشکل تو نہیں۔ آپ گاؤں گئے ہوئے ہیں، آپ وہاں بھی اپنی کلاس اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ بس آپ کے پاس ایک اسمارٹ فون ہونا چاہیے، پھر وہ کسی کا بھی ہو، ماما کا ہو سکتا ہے، بابا کا ہو سکتا ہے، فیملی میں سے کسی کا ہو سکتا ہے۔ اگر لیپ ٹاپ نہیں بھی ہے تو چلے گا، اب اسمارٹ فون کے اوپر اپنی کلاس جوائن کریں، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ آرام سکون سے جب چاہیں اپنی کاپی پینسل لے کر کونے میں بیٹھ جائیں، اپنی کتاب کے ساتھ اور اپنے موبائل فون کے ساتھ، اور سکون سے آپ اپنا کام شروع کر دیں۔ کتاب آپ کی رہنما اور موبائل فون اب سے آپ کا استاد۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ جی بچوں، صفحہ نمبر 70، اور ہم پڑھیں گے نظم جس کا نام ہے کیے جاؤ کوشش میرے دوستو۔ اس نظم میں ہم دیکھیں گے کہ جو لوگ کوشش نہیں کرتے ان کے لیے زندگی میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اگر آپ زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کچھ بننا چاہتے ہیں، کچھ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوشش کرتے رہیں، بار بار کوشش کریں اور محنت کی عادت کو اپنائیں اور ہمت نہ ہاریں، ٹھیک ہے۔ چلتے ہیں سبق کی طرف۔ پہلے میں اس کی پڑھائی کروں گی، اس کو آپ سنیے گا دھیان سے۔ دکان بند کر کے رہا بیٹھ جو، تو دی اس نے بالکل ہی لٹیا ڈبو، نہ بھاگو کبھی چھوڑ کر کام کو، توقع تو ہے خیر جو ہو سو ہو، کیے جاؤ کوشش میرے دوستو۔ جو پتھر پہ پانی پڑے متصل، تو بے شب گھس جائے پتھر کی سل، رہو گے اگر تم نہیں مستقل، تو ایک دن نتیجہ بھی جائے گا مل، کیے جاؤ کوشش میرے دوستو۔ یہ مانا کہ مشکل بہت ہے سبق، برا ہے مگر اضطراب اور قلق، دوبارہ پڑھو پھر پڑھو ہر ورق، پڑھے جاؤ جب تک ہے باقی رمق، کیے جاؤ کوشش میرے دوستو۔ اگر طاق میں تم نے رکھ دی کتاب، تو کیا دو گے کل امتحان میں جواب، نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھنا جناب، کہ ہو جاؤ گے ایک دن کامیاب، کیے جاؤ کوشش میرے دوستو۔ جو بازی میں سبقت نہ لے جاؤ تم،
खबरदार हरगिज़ न घबराओ तुम, न ठटको न झिझको न पछताओ तुम, ज़रा सब्र को काम फरमाओ तुम, किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। शायर मौलाना इस्माइल मेरठी। इन्होंने इतने खूबसूरत अल्फाज में आपको मेहनत का दर्स दिया है इस नज़म के ज़रिए कि क्या कहने। पेंसिल पकड़ लीजिए, मैं लफ्ज़ों के मायने बताती जाऊंगी और आप इससे साथ साथ लिखते जाइए, मगर ख़बरदार कोई बच्चा पेन इस्तेमाल नहीं करेगा और पॉइंटर भी यूज़ नहीं करेगा, सिर्फ पेंसिल, लेड पेंसिल। दुकान बंद करके रहा बैठ जो। पहले मिसरे में वो कहते हैं कि अगर तुमने दुकान बंद कर दी और तुम दुकान बंद करके बैठ गए तो दी उसने बिल्कुल ही लुटिया डबो। लुटिया डबोना बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर देना, बिल्कुल ही तबाह बर्बाद कर देना किसी चीज़ को। कि जो दुकान बंद करके बैठ जाएगा तो उसने तो समझो कि बिल्कुल ही तबाह बर्बाद कर दिया, उसने तो बिल्कुल ही काम को ख़त्म कर दिया। ना भागो कभी छोड़ कर काम को, कभी भी अपने काम को अधूरा छोड़कर ना भागो। तवक्को तो है खैर जो हो सो हो, उम्मीद तो है तवक्को उम्मीद तो है, कुछ ना कुछ तो होगा। अगर तुम कोशिश कर रहे हो तो ज़्यादा नहीं तो कम से ही, मगर कुछ ना कुछ तो होगा। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों, और मेरे दोस्तों तुम कोशिश करते ही चले जाओ। जो पत्थर पे पानी पड़े मुत्तसिल लगातार बराबर, अगर किसी पत्थर के ऊपर भी बराबर पानी की बूंद गिरती रहे तो बेशुबा घिस जाए पत्थर की सिल, तो पत्थर की सिल जो है वो भी कोई इस बात में शुबा नहीं, बेशुबा कोई शुबा शक नहीं इस बात के अंदर कि वो भी घिस जाएगी, उसमें भी जो है वो सुराख हो जाएगा। किसमें? पत्थर की सिल में। सिल होती है पत्थर का एक बड़ा सा टुकड़ा जिसके ऊपर आम तौर पर मसाला वगैरह भी पीसा जाता है, चटनी भी पीसी जाती है, उसको सिल कहते हैं। रहोगे अगर तुम नहीं मुस्तकिल, अगर तुम लगातार काम नहीं करते रहोगे, अपने काम को पूरी तवज्जो के साथ मुस्तकिल बुनियादों पर नहीं करोगे तो एक दिन नतीजा भी जाएगा मिल, तो तुम्हें नतीजा मिलेगा और वो अच्छा नहीं होगा। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों अपने काम की तरफ तवज्जो दो और कोशिश करते चले जाओ। ये माना कि मुश्किल बहुत है सबक, मैं मानता हूँ कि सबक बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए, तुम अभी छोटे बच्चे हो और इन किताबों का पढ़ना तुम्हारे लिए आसान नहीं है। बुरा है मगर इज़्तिराब और कलक, मगर बेचैनी, काम करते वक्त बेचैन हो जाना, ठीक है, और कलक, ये भी अच्छी चीज़ नहीं है, परेशान होना, ठीक है, ये चीज़ें अच्छी नहीं है कि तुम जब पढ़ने बैठो तो तुम्हारे दिल में बेचैनी हो कि अभी ख़त्म हो काम और मैं उठूँ यहाँ से, ठीक है, ये और जो है ये अच्छी चीज़ नहीं है। दोबारा पढ़ो, फिर पढ़ो हर वर्ग, तुम उसे बार बार पढ़ो। अगर कोई लफ्ज़ तुम्हारे ज़ुबान पे नहीं चढ़ रहा, कोई किसी लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ तुम्हें मुश्किल लग रहा है तो उसे बार बार पढ़ो, हर सफ़े को, वर्ग सफ़ा, हर सफ़े को बार बार पढ़ो, पढ़े जाओ जब तक है बाकी रमक, जब तक तुम्हें जान है, रमक ज़रा सारी भी जान है तुम्हारे अंदर, ठीक है, उस वक्त तक तुम उसको पढ़े जाओ। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों कोशिश करते ही चले जाओ। अगर ताक में तुमने रख दी किताब, ताक होता है एक छोटा सा खाना बना हुआ होता है दीवार के अंदर, जिसमें पुराने ज़माने में चीज़ें या चिराग स्पेशली रखा जाता था, ठीक है, उसको ताक बोलते हैं। दीवार के अंदर एक छोटा सा खाना बना होता है, चिकोर या किसी भी शक्ल का, तो उसके अंदर आमतौर पर चिराग रखा जाता था और उसमें जो है वो किताब वगैरह भी रखी जाती है। तो अगर तुमने किताब उठाकर उसे पढ़ने की बजाय दीवार में बने हुए उस जगह पर उस सुराख में रख दी तो क्या दोगे कल इम्तहान में जवाब? तो ज़ाहिर है तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो कल जब इम्तहान होगा तो तुम उसमें क्या जवाब दोगे? न पढ़ने से बेहतर है पढ़ना जनाब, बिल्कुल ही ना पढ़ने से, हिम्मत हार के किताब रख देने से बहुत बेहतर है कि तुम पढ़ने की कोशिश करते रहो, कि हो जाओगे एक दिन कामयाब। क्योंकि अगर तुम कोशिश करते रहोगे तो एक ना एक दिन तुम इसमें कामयाब हो ही जाओगे। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों कोशिश और मेहनत जारी रखो। जो बाजी में सबकत ना ले जाओ तुम, अगर तुम जीत ना सके, सबकत ले जाना, बाजी में सबकत ले जाना, जीत जाना, ठीक है, बाजी में, खेल में, अगर तुम खेल में जीत ना सको, खबरदार हरगिज़ न घबराओ तुम। तो इस बात से घबराना नहीं, खेल है, हार जीत तो होती रहती है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। न झिझको न पछताओ तुम, ना तो तुम घबरा कर रुक जाओ, न झिझको मतलब
शर्माओ ना पछताओ, उतना तुम्हें इसका पछतावा होना चाहिए, ठीक है। ना तुम रुको, रुको, झिझको, शर्माओ और ना पछताओ, इस बात के ऊपर शर्मिंदा हो और पछतावा तुम्हारे अंदर आए। ज़रा सब्र को काम फरमाओ, तुम सब्र को थोड़ा सा काम में लाओ, अपने अंदर सब्र पैदा करो। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों, और मेरे दोस्तों कोशिश करते ही चले जाओ। जी बेटा, आप लोगों ने मुश्किल अल्फाज के मायने लिख लिए और एक दफ़ा आपने नज़्म को सुन भी लिया, ठीक है। आप मेरे से थोड़ी तफसील के साथ जो हमारे शायर की जो दिल में जो बात है उसको ज़हन में रखते हुए मैं इसको थोड़ी तफसील से आपको समझाऊंगी, ताकि आप इस पूरी नज़्म के अंदर छुपी हुई बात को समझ सकें, ठीक है। बेसिक बातें जो हैं वो आपको पता चल गई कि शायर क्या चाह रहे हैं। शायर ये चाह रहे हैं कि आप जो मेहनत करते चले जाओ, ठीक है, मेहनत करो और कभी हार ना मानो, ठीक है। लेकिन इस बात को थोड़ा तफसील से बताऊंगी ताकि आपको ये बहुत अच्छे से वाज़ेह हो जाए आपके ऊपर शायर की तशरीह। हाँ जी, पहले शेर में वो कहते हैं कि अगर तुमने अपनी दुकान बंद कर दी तो समझो तुमने लुटिया डबो दी। दुकान बंद करके रहा बैठ जो, तो दी उसने बिल्कुल ही लुटिया डबो। यानी कि जो शख्स जो है वो दुकान पर जाएगा ही नहीं तो वहाँ से कमाएगा कैसे? अगर दुकान खोलोगे नहीं तो ग्राहक कैसे आएगा? ग्राहक नहीं आएगा तो तुम चीज़ कैसे बेचोगे? सौदा कैसे बेचोगे? सामान कैसे बेचोगे? और अगर सामान नहीं बिकेगा तो तुम कमाओगे कैसे? तो फिर तुम्हारी जेब में पैसे कैसे आएंगे? तो ये एक चीज़ दूसरी से जुड़ी हुई है। तो लिहाजा अगर तुम दुकान नहीं खोलोगे तो समझो कि तुमने अपना खुद ही अपना काम जो है वो ख़राब कर लिया, अपनी लुटिया दबो दी, अपना सारा काम जो था वो तबाह बर्बाद कर दिया। तुमने अपनी दुकान जो थी उसको ताला लगा दिया। तो इसका मतलब है कि तुम इससे कुछ हासिल नहीं कर सकोगे, ठीक है। ना भागो कभी छोड़ कर काम को, तो है खैर जो हो सो हो। उम्मीद ना छोड़ो और कभी अपने काम को अधूरा छोड़ कभी ना भागो। जो काम तुमने शुरू किया है, जिस काम का तुमने आगाज़ किया है उसको मुकम्मल करो। आखिरी सांस तक कोशिश करो कि उसको मुकम्मल कर सको और उसमें कामयाबी हासिल कर सको। क्योंकि अगर तुम कोशिश करोगे और उसको छोड़कर नहीं भागोगे तो फिर तुम्हारी उम्मीद बाकी रहेगी कि इस काम में बेहतरी हो सकती है। अगर तुमने काम को दरमियान में छोड़ दिया तो फिर तो तुम्हारी उम्मीद ही ख़त्म हो जाएगी ना। तुम्हें इस बात की उम्मीद ही नहीं रहेगी कि ये काम कभी मुकम्मल हो सकेगा या इस काम से तुम कभी फ़ायदा उठा सकोगे। तो वो ये कह रहे हैं कि अपनी दुकान खोलो, यानी कि अपनी सी कोशिश करो। तुम दुकान खोलोगे तो इंशाल्लाह ग्राहक भी आएगा और फिर तुम्हें उससे फ़ायदा भी होगा। और अगर तुम कोई काम मुकम्मल नहीं करोगे तो उससे तुम्हें नुकसान होगा। और अगर तुम अपना काम मुकम्मल करोगे और उसे दरमियान में छोड़कर नहीं भागोगे तो फिर क्या होगा? उसका अच्छी उम्मीद रखो कि उसका ज़रूर कोई ना कोई तुम्हें फ़ायदा हो जाएगा। और किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों, और मेरे दोस्तों कोशिश जारी रखो, इसको बीच में ना छोड़ो। जो पत्थर पे पानी पड़े मुतसिल तो बेशुबह खिस जाए पत्थर की सिल। रहोगे अगर तुम नहीं मुस्तकिल तो एक दिन नतीजा भी जाएगा मिल। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। कहते हैं कि अगर पत्थर जो कि बहुत मज़बूत होता है और उसको तोड़ना भी मुश्किल होता है, लेकिन अगर उसके ऊपर एक एक कतरा पानी का भी गिरता रहे तो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर वहाँ पे सुराख हो जाता है, ठीक है। पहले हमने एक नज़्म में पढ़ा था ना कि अगर एक एक शम्मा जलाई जाए तो रोशनी बढ़ जाती है। इसी तरह अगर एक एक कतरा पानी का गिरता रहे पत्थर के ऊपर तो क्या होता है कि उसके अंदर भी सुराख हो जाता है। मतलब ये कि मुस्तकिल कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। और अगर तुम इस काम को मुसलसल करते रहोगे, एक काम को मुसलसल करते रहोगे तो तुम उसमें माहिर हो जाओगे। देखिए बेटा, जब आप लोगों ने लिखना शुरू किया था तो आपको लिखना नहीं आता था। बहुत सारे बच्चे हैं जो उर्दू लिखने से घबराते थे, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता उन्हें उर्दू लिखनी आ गई। शुरू में उनसे बे की शक्ल नहीं बन रही होती थी, सीन के जो शोशे हैं वो मुकम्मल नहीं बन रहे होते थे, ऐसा ही होता था ना। लेकिन अब आप लोग इतना खूबसूरत लिख लेते हो, ठीक है। इसलिए कि आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने कोशिश करना बंद नहीं किया और मुसलसल आप कोशिश करते रहे। एक दफ़ा गलत हुआ, उसको आपने मिटाया, दोबारा लिखा, फिर गलत हुआ, फिर मिटाया, और आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि आप उसे शोशे ठीक बन गए। फिर आपने उसको और ख़ूबसूरत किया, लिखाई के ऊपर मेहनत की, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी खुशखती की जो है वो बहुत खूबसूरत होना शुरू होगी और आपका काम जो है वो कॉपी के ऊपर बहुत खूबसूरत और नीट होने लग गया, ठीक है। और ये सब किसका फल है? आपकी मेहनत का, ठीक है। ये किसका नतीजा निकला?
آپ کی مسلسل کوشش کا. اگر آپ کوشش کرنا چھوڑ دیتے, آپ پینسل پھینک دیتے اور کہتے جی مجھ سے تو نہیں لکھا جا رہا, مجھ سے تو پیج نہیں ٹھیک طرح سے بن رہی, ٹھیک ہے, اور مجھ سے تو یہ بات نہیں ہو رہی, مجھ سے تو وہ بات نہیں ہو رہی, تو کیا ہونا تھا, آپ کی وہیں پہ پڑھائی لکھائی کا کام آپ کا رک جانا تھا, اور آپ کبھی بھی یہ کامیاب ہوتے ہوئے آج 7ویں جماعت میں نہ بیٹھے ہوئے ہوتے. یہ سارا کچھ جو بھی آج کرامت ہے وہ آپ کی محنت کا کرامات ہے, ٹھیک ہے. لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ لکھو یا پڑھو یا جو بھی زندگی میں کام کرو وہ مستقل کرتے رہو, اس کو بیچ میں چھوڑو نہیں, تھوڑا تھوڑا ہی صحیح لیکن روز کرو. جیسے کہ ہم روز کا ایک سبق پڑھتے ہیں اور اس کی مشق کرتے ہیں, ہم یہ تو نہیں کہہ رہے نا کہ 5-7 سبق اکٹھے ہی پڑھ لیں, ہم پڑھ رہے ہیں روزانہ ایک سبق پڑھتے ہیں, لیکن ضروری کیا ہے کہ روز کا روز کام کریں, روز اس کی مشق مکمل کریں تاکہ ہماری کاپی جو ہے وہ آہستہ آہستہ مکمل ہو جائے. یہ مانا کہ مشکل بہت ہے سبق, برا ہے مگر اضطراب اور قلق, دوبارہ پڑھو پھر پڑھو ہر ورق, پڑھے جاؤ جب تک ہے باقی رمق. یہ لفظ جو ہے یہ ذرا غور سے آپ سنیں, ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ میں مانتا ہوں تم چھوٹے بچے ہو, ابھی کلاس 7ویں میں تم پڑھتے ہو, 7ویں کے طالب علم ہو اور بہت چھوٹے سے بچے ہو, اور تمہارے لیے بہت سارے لفظ جو ہیں وہ بولنا ادا کرنا مشکل ہے, بہت سارے اسباق تمہیں مشکل لگتے ہیں, بہت ساری باتیں تمہیں سمجھ میں نہیں آتی, لیکن اگر تمہارے اندر بے چینی ہے تو اس کو سکون میں لے کر آؤ, اپنے اندر کی بے چینی کو ختم کرو, ٹھیک ہے, اور بھاگ دوڑ نہ کرو, بڑے سکون سے بیٹھو, آرام سے اپنی کتاب لو اور یہ نیت اور یہ ارادہ کرو کہ میں نے اس کو سیکھنا ہے, پھر پڑھو, اگر نہیں سمجھ آ رہا پھر پڑھو, دوبارہ پڑھو, پھر پڑھو, ایک ایک صفحے کو ورق صفحہ ایک ایک صفحے کو بار بار پڑھو, اور اس وقت تک پڑھو کہ جب تک تمہارے جو ہے نا وہ تھوڑی سی بھی تمہیں کمی پیشی محسوس ہوتی ہے. اس کے 2 معنی آئیں گے, ایک یہ کہ تمہارے اندر تھوڑی سی بھی جان ہے, تم محنت کرو, ٹھیک ہے, جب تک تم میں جان ہے, جب تک تمہارے اندر جوش ہے, جذبہ ہے, اس وقت تک تم اس کو پڑھتے رہو. اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب تک تمہارے جو سبق جو تم پڑھ رہے ہو اس میں تھوڑی سی بھی کمی پیشی ہے کہ ایک لفظ پراپر تم ادا نہیں کر پا رہے ہو, تو اس میں بار بار کوشش کرو جب تک کہ اس لفظ کو تم صحیح تلفظ کے ساتھ ادا نہ کر پاؤ, ٹھیک ہے, اور کوشش کرتے ہی چلے جاؤ. اگر تاک میں تم نے رکھ دی کتاب تو کیا دو گے کل امتحان میں جواب, نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھنا جناب, کہ ہو جاؤ گے ایک دن کامیاب. کہ اگر تم نے کتاب اٹھا کر اوپر شیلف میں رکھ دی, تاک میں نے آپ کو بتایا کہ ایک چھوٹا سا خانہ جو دیوار میں بنا ہوتا ہے اس کے اندر چیزیں رکھی جاتی ہیں, تو اس کو آج کے دور میں وہ تاک تو نہیں ہوتے, ہمارے یہاں پہ شیلفس ہوتی ہیں آج کل. تو اگر تم نے کتاب اٹھا کے شیلف میں رکھ دی, الماری میں رکھ دی, یا کسی بھی اونچی جگہ پر رکھ دی, تو پھر تم امتحان میں کیا جواب دو گے, ان سوالوں کا جو تم سے پوچھے جائیں گے کیا جواب دو گے, کیونکہ تم نے تو کتاب پڑھی نہیں ہوگی دھیان کے ساتھ. تو جب تم نے کتاب نہیں پڑھی تو تم اس میں موجود جوابات جو ہیں وہ تم نے نہیں پڑھے, تو تم سوالوں کا جواب کیسے دو گے. نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھنا جناب. تو بیٹا بہتر یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ تم کتاب اوپر رکھ کر بات ختم کر دو یا بے فکر ہو جاؤ کہ بھئی مجھے تو پڑھنا ہی نہیں آتا, میں نہیں پڑھ سکتا, اس کی بجائے بہتر ہے کہ تم کوشش کرو اس کو بار بار پڑھنے کی. گھر میں کسی بڑے کی مدد لے لو, اپنے استاد کی مدد لے لو, لیکن پڑھو, پڑھنے سے ہاتھ نہ کھینچو. کہ اگر تم کوشش کرتے رہو گے تو ہو جاؤ گے ایک دن کامیاب. تو ایک نہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ جب تم کامیاب ہو جاؤ گے. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو شروع میں آپ سے نہیں ہو پاتی تھی, بہت سارے الفاظ ہیں جو آپ نہیں ادا کر پاتے تھے, نہیں لکھ سکتے تھے, بہت سارے الفاظ ہیں جن کی املا آپ کو نہیں آتی تھی, لیکن اب آپ ان الفاظ کو آرام سے لکھ لیتے ہیں اور بغیر غلطی کے لکھ لیتے ہیں. تو یہ سب جو ہے یہ آپ کی محنت اور کوشش کا نتیجہ ہے. تو میرے دوستو کوشش کیے جاؤ, جو بازی میں سبقت نہ لے جاؤ تم, خبردار ہرگز نہ گھبراؤ تم, نہ جھٹکو نہ پچھتاؤ تم, ذرا صبر کو کام فرماؤ تم, کیے جاؤ کوشش میرے دوستو. اگر تم کھیل میں جیت نہیں رہے ہو, اگر تم سبق میں کامیاب نہیں ہو رہے ہو, اگر کسی امتحان میں تمہارے اچھے نمبر نہیں آ رہے ہیں, تو اس بات سے تم نے گھبرانا نہیں ہے, ٹھیک ہے, خبردار. یہ نہ ہو کہ گھبرا کے تم ہاتھ کھینچ لو, یہ نہ ہو کہ گھبرا کے تم قدم پیچھے کر لو, یہ سوچ بیٹھو کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا, میں یہ کھیل نہیں سکتا, میں یہ سبق پڑھ نہیں سکتا, میں یہ الفاظ لکھ نہیں سکتا, ٹھیک ہے, میں اس بات کو سمجھ نہیں سکتا, میں اس کی تشریح نہیں کر سکتا, میں اس کا مرکزی خیال نہیں کر سکتا. مطلب کسی بھی چیز کے بارے میں آپ یہ مت سوچو کہ اس دفعہ مجھ سے نہیں ہوا تو آئندہ بھی نہیں ہوگا. آپ بار بار کوشش کرو, نہ جھٹکو نہ پچھتاؤ تم, نہ رکو,
रुकना नहीं है, तुमने कोशिश जारी करनी है। ठिठकना होता है ना, किसी चीज़ को अचानक अपने सामने देखकर आप रुक जाते हैं, किसी खतरे को देखकर, किसी भी ऐसी चीज़ को जो आपके लिए अचानक से सामने आ जाए तो आप रुक जाते हैं, उसको ठिठकना कहते हैं। और ना झिझकने की, शर्माने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर नहीं इस बात समझ आ रही तो उस्ताद से दोबारा पूछो, घर के किसी बड़े से पूछ लो, ठीक है। मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती बेटा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, मैं फिर आपको वो बात, उसको बात का जवाब भी दूँगी, वो बात आपको समझा भी दूँगी, ठीक है। और ना ही आप पछताओ, ठीक है। मगर आपने करना क्या है, ज़रा सब्र को काम फरमाओ। तुम अपने सब्र, अपने अंदर के सब्र को, सुकून को, अपने मिजाज में सब्र पैदा करो और उसको काम में लाओ, ठीक है। काम फरमाओ तुमसे मुराद है उसको काम में लाओ, यानी कि जो भी काम करना है उसको सब्र और सुकून से करो। तुम्हारे अंदर मौजूद जो सब्र है उसको इस्तेमाल करो और दोबारा से वो कोशिश कर देखो, फिर कोशिश करो, फिर कोशिश करो और किए जाओ कोशिश, और आखिर तक कोशिश करते जाओ मेरे दोस्तों, जब तक कि तुम लोग कामयाब और कामरान नहीं हो जाते। जी बेटा, मैंने अपनी सी पूरी कोशिश की है कि मैं आपको पूरी तफसील से, पूरी डिटेल से इस नज़्म जो है वो समझा सकूं, और अब मैं आपको इसका मरकज़ी ख़्याल भी बता देती हूँ। लेकिन आपको फिर भी कोई मुश्किल हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। मौलाना इस्माइल मेरिठी जो हैं उनका ये नज़म लिखने का मरकज़ी ख़्याल ये है कि जैसे भी हालात हों, जो भी आपके ऊपर गुज़र रहा हो, जैसे भी हालात, जैसे भी वाक़यात हों, आप कोशिश करना ना छोड़ो, ठीक है। इस्माइल मेरिठी इस नज़म में ये कहते हैं, हमें ये बता रहे हैं कि मेरे दोस्तों, हम बच्चों को मुखातिब करके कहते हैं कि है मेरे दोस्तों, मेहनत और कोशिश किए जाओ। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो मेहनत और कोशिश किए जाओ, और इसी में तुम्हारी कामयाबी का राज छुपा हुआ है, ठीक है। चलें बेटा, मश्क की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 1 है, अगर कोई दुकानदार अपनी दुकान ना खोले तो इससे क्या नुकसान होगा, बताएं। मैंने आपको बताया कि अगर कोई दुकानदार अपनी दुकान ही नहीं खोलेगा तो ज़ाहिर है उस पर जो ग्राहक आएंगे वो वापस लौट जाएंगे और वो उनसे कोई कमाई नहीं कर सकेगा, ठीक है। लगातार और मुसलसल काम करने का क्या फ़ायदा होता है? लगातार और मुसलसल काम जो होता है वो कामयाबी की ज़मानत होता है। इम्तहान की तैयारी ना करने का क्या नतीजा निकलता है? बहुत आसान सी बात है कि हम फेल हो जाते हैं, हम नाकाम हो जाते हैं। अगर खेल में कामयाबी ना मिल सके तो क्या करना चाहिए, कौन बताएगा? जी शाबाश, दोबारा कोशिश करनी चाहिए। वेरी गुड। अगर आप दोबारा कोशिश करेंगे तो आप कामयाब भी हो सकते हैं, और अगर फिर भी कामयाब नहीं हो तो फिर कोशिश करें, हार नहीं माननी आपने। सब्र से मुसीबतें सहने का क्या फ़ायदा होता है? सब्र से मुसीबतें सहने का फ़ायदा ये होता है कि हम कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाने लगते हैं, हमारे अंदर एक सुकून, एक ठहराव आ जाता है। इस नज़्म से हमें क्या सबक मिलता है? बहुत ही आसान है और इसका जवाब आप लोगों ने खुद देना, मैं नहीं बताऊंगी इसका जवाब। सब बच्चे अपने अपने हिसाब से अपनी कॉपी पर इसका जवाब लिखें कि इस नज़्म से आपने क्या सबक सीखा है, ठीक है। नज़्म के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। सवाल नंबर 2 है जी ये। तो दी उसने बिल्कुल ही लुटिया डबो, लुटिया, लुटिया पे टिक करें। जो पत्थर पे पानी पड़े मुत्तसिल, पानी, तो क्या दोगे कल इम्तहान में जवाब, कल। ये माना कि मुश्किल बहुत है सबक, खबरदार हरगिज़ ना घबराओ तुम, शाबाश। आगे फिर सवाल नंबर 3 है जी। ये भी एक कॉलम है जिसको हमने आपस में मिलाना है। दुकान बंद करके रहा बैठ जो, तो दी उसने बिल्कुल ही लुटिया डब्बो, ये वाला आपने इसको इससे मिलाया और फिर बाद में आपने ये खुशखत करके पेंसिल से यहाँ पर लिखा, ठीक है। जो पत्थर पे पानी पड़े मुत्तसिल, तो बेशुबा घिस जाए पत्थर की सिल, इसको इससे मिला लिया। अगर ताक में तुमने रख दी किताब, तो क्या दोगे कल इम्तहान में जवाब। देखें मुझे याद भी हो गई है पूरी नज़म। जो बाजी में सबकत ना ले जाओ तुम, खबरदार हरगिज़ ना घबराओ तुम। ये माना कि मुश्किल बहुत है सबक, बुरा है मगर इज़्तिराब और कलक, ठीक है। इस तरह पहले पेंसिल से आपने इसको मैच कर लिया और फिर ये वाले जो जुमले हैं जो बिल्कुल उसके ऑपोजिट यहाँ पे लाकर आपने खुशखत करके लिखने, और आपका ये सारा कॉलम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अराब लगाने हैं आपने। तवक्को,
मुत्तसिल, शुबह, सबक, इम्तहान। जुमलों में इस्तेमाल करना है लुटिया डबोना, इज़्तिराब, रमक, जुस्तजू, सबक। जी, अब हमारी जो ये नज़्म है इसका ये मश्क भी मुकम्मल होगी और हमारी नज़्म भी मुकम्मल होगी। अब आप लोगों ने कॉपी उठा लेनी है और आपने अपना जो आपके पास आपका पेन है, आपका मार्कर है और आपका स्केल है उसको उठा लेना है और उससे आपने क्या करना है जी, सबसे पहले आपने मार्जिन लाइन लगानी है, हाशिया लगाना है। हाशिया लगाने के बाद आपने खूबसूरत करके सबक का उन्वान लिखना है। क्या उन्वान इसका क्या था, किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों, सबसे ऊपर आपने उन्वान लिखा, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या किया कि सवाल लिखे। पहले उससे भी पहले आपने ये जो अल्फाज हैं जिनके मायने मैंने आपको बताए हैं उसके लिए आपने यूं करके आपने कॉलम ड्रा किए, ठीक है, कॉलम लगाया और फिर क्या किया, अल्फाज मायने ऐसे बनाया। फिर मुश्किल अल्फाज लिखिए और उनके सामने उनके मायने लिखिए और उसके बाद मश्क की तरफ आ जाइए और फिर आपने क्या करना है, सवाल और जवाब किया, ठीक है। फिर आपने अराब वाला काम किया, फिर उसके बाद आपने जुमले बनाए, ठीक है। और ये जो सवाल नंबर 2 है और सवाल नंबर 3 है ये आपने किताब के ऊपर ही पेंसिल से कर लेना है। इस तरह से आपकी सारी मश्क का काम भी मुकम्मल हो जाएगा। और हाँ, ये जो आपकी नज़्म है इसको कम अज़ कम 3 बार दुरुस्त लफ्ज़ के साथ आपने पढ़ना है और कोशिश करें कि किस घर में किसी बड़े को आप सुनाएं, ताकि अगर आपकी कोई गलती है तो वो दूर हो जाए और वो आपके साथ आगे तक ना जाए, ठीक है। शाबाश। जी बेटा, आज की हमारी नज़म मुकम्मल हुई और आपने देखा कि किस तरह एक एक बूंद पानी की पत्थर पर असर करती है और पत्थर में भी सुराख हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह रोज़ का एक सबक, एक मश्क हर मजमून से आपने ज़रूर करनी है। उससे क्या होगा, जैसे कि मैंने पहले भी एक बार आपसे बात की थी, आपकी धीरे धीरे कॉपीज़ मुकम्मल हो जाएंगी, आपका सारा जो निसाब है वो मुकम्मल हो जाएगा और आप इस काबिल हो जाएंगे कि जो ही स्कूल खुलेगा आप बिला झिझक अपनी क्लास में जाकर बैठेंगे। फिर आप 8 से पेपर देकर 9th में चले जाएं, 9th के पेपर देकर आप 10th में चले जाएं और 10th की आपकी तैयारी ऑटोमेटिकली साथ साथ हो रही है और आप आराम स्कूल से 10th के पेपर दें, मैट्रिक क्लियर करें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए। मैं आपसे यही कहूँगी बेटा कि इस मौके को गवाइए मत, ये आपके लिए बहुत बड़ी सहूलत हो गई है। ये ऑनलाइन क्लासेस जो हैं ये आपके लिए बहुत बड़ी आसानी हो गई है। यहाँ आपको अपने सारे मज़ामीन पढ़ने को मिलते हैं। ऐसा ही है ना, आपने खुद ज्वाइन करके देखा क्लास, सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे मुहैया हैं आपको, एक से एक काबिल उस्ताद है जो आपकी मदद के लिए मौजूद है। इतनी तफसील से आपको सारी बातें समझाई जाती हैं और आप तो माशाल्लाह है ही बड़े ज़हीन तुलबा, सारे के सारे प्यारे बच्चे, बड़े शौक से पढ़ते हैं आप लोग, तो आपको तो अव्वल तो मुश्किल नहीं आएगी, ये तो मुझे यकीन है। लेकिन बच्चे हैं ना, कहीं चूक जाए तो मसला नहीं है, जूम के थ्रू आप सवाल कीजिए, बात कीजिए हमसे, कमेंट में आकर बात कीजिए, हम आपके सवाल का जवाब देंगे ताकि आपके जहन में कोई भी बात ऐसी ना रह जाए जो आपको समझ नहीं आए, कोई गिरा बाकी ना रह जाए। बेटा इस मौके को गवाइएगा मत, बार बार कोशिश करने की जो सबक आज हमने पढ़ा है उसको भुलाना नहीं है, हमने कोशिश करते रहना है और एक दिन हम ज़रूर कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। मश्क का काम मुकम्मल कीजिएगा जिस तरह से मैंने आपको समझाया है और बताया है और अपनी कॉपी को साथ साथ मुकम्मल करते चले जाएं और आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह ताला आप 7th से 8th क्लास में आराम से अच्छे नंबर लेके पूरी दुनिया के सामने ये साबित करके कि हम बहुत ही ज़िम्मेदार हैं, हम बहुत ज़िम्मेदार बच्चे हैं, हम अपना वक्त ज़ाया नहीं करते, खेल कूद अपनी जगह और पढ़ाई अपनी जगह, और हमने इस दफ़ा बहुत अच्छे नंबर लेने हैं। यूँ समझे बेटा कि ये ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए जो आप पढ़ रहे हो ना, ये इसको एक चैलेंज की तरह ले आप, यूँ समझे जैसे कि आपको एक चैलेंज दिया गया है कि आप स्कूल तो नहीं जा सकते लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए तो पढ़ सकते हैं और आपने पढ़ के दिखाना है। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले सबक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।